One, two, three, four. One, two, three. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I really thought we had it covered. Was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more, no, no. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more, no, no. Yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. And now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. And now, no words no more, no. We're done now, no words no more. We're done now, no words no more. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So those who are new, hi, my name is Samnadra and I am making video on today like what I have done in my last few days, last few weeks, because I am inactive on my YouTube as well as on my Insta. So किसी को पता ही नहीं था सपना क्या कर रही है. So I am doing very important thing in my point of view. So आज की कहानी और आज की पूरी वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है. So without wasting any other time, let's jump into the video. So guys, I am preparing for my SSB interview और मेरा SSB इंटरव्यू है 26 जुलाई को. सो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड मैं आपको वो वाली स्टोरी बाद में बताऊंगी कि मैं SSB के लिए कैसे मतलब एलिजिबल हूँ कैसे, ठीक है. तो मैं उसी की कोचिंग ले रही थी. लास्ट 14 डेज मैंने उस चीज़ की कोचिंग ली थी, ठीक है. मेरी कोचिंग स्टार्ट हो गई थी 13th ऑफ जून से मेरी कोचिंग स्टार्ट हो गई थी एंड 25 तक चली थी मेरी कोचिंग. ऑलराइट, 25 जून तक. सो मैं कोचिंग के बारे में आपको बता देती हूँ. पहले आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो उस कोचिंग में तो आपकी फीस लगेगी. अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री से जा रहे हो या फिर आपके फादर आर्मी में हैं तो आपकी फीस लगेगी 12,980. और अगर आप लोग के फादर नहीं है आर्मी में या एनसीसी एंट्री से नहीं जा रहे हो, सीडीएस के थ्रू, एनडीए के थ्रू जा रहे हो तो वो लोग आपकी फीस लेंगे 14,150 रुपीज इन माई पॉइंट. मेरे को तो जितना याद है इतने ही पैसे लेते हैं, मतलब 1400 से ऊपर ही होंगे, 14,000 से ऊपर ही होंगे, ठीक है.
सो ये उनकी फीस स्ट्रक्चर है और जो भी उन्होंने मुझे पढ़ाया आज तक, इट्स लाइक अमेजिंग। आप लोगों को एक बार जाके देखना चाहिए। मतलब वो लोग आपको ऐसा नहीं करेंगे कि कोई चीज मतलब अच्छे से एकदम 2-3 दिन लेकर सिखाएंगे एक ही चीज, आपको एक ही दिन में सारी चीज बता देंगे और उसी में आपको फिर उसको घर पे आके प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि अगर आप एसएसबी प्रोसीजर के बारे में जानते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे हमारा स्क्रीनिंग होता है, तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट डे तो हमें जो संडे वाला दिन था उसमें हमें पहले उन्होंने जो OLQs होते हैं वो बताए थे उन्होंने, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। एंड नेक्स्ट डे से हमारा जो OIR होता है वो वाला क्लास चली थी। एंड उसके नेक्स्ट डे चेंज होती गई थी। ये नहीं थी कि एक ही क्लास आपकी फिर एक दिन होगी फिर नेक्स्ट डे भी होगी, बस एक दिन वो क्लास होती थी और उसी क्लास में आपको पूरा समझा दिया जाता था A to Z की फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपका क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तक कि आपको वो स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे, बुक्स, फाइल्स वगैरह सारी चीजें वो आपको प्रोवाइड करेंगे और आप उन्हीं को पढ़ लोगे तो भी आप क्लियर हो सकते हो। मुझे तो इतना ही बताया गया है और आज है तारीख, आज 27 जून है और मेरा 26 जुलाई को मेरा है SSB। ऑलराइट, सो मैं उसका भी आपको पूरा फीडबैक दूंगी कि कैसा गया कैसा नहीं गया। एंड मे भी शायद मैं उस दिन ब्लॉग भी बनाऊं तो आप सबको मैं वो भी बताऊंगी। सो गाइज, मेरी एंट्री जो है SSB के लिए वो NCC स्पेशल एंट्री है। मैंने NCC जो है वो अपने कॉलेज में 3 साल करी थी, तो उसी में मेरा जैसे कि अगर आपका A या B ग्रेड आएगा तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे SSB के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप एलिजिबल हो जाओगे तो 3 सेंटर्स निकलते हैं SSB के, बैंगलोर निकलेगा या फिर भोपाल या फिर इलाहाबाद। इन 3 में से आपके सेंटर्स निकलेंगे। यही NCC के लिए मेरे ख्याल से तो यही 3 सेंटर्स होते हैं, तो आपको इन्हीं 3 सेंटर्स में भेजा जाएगा। तो मेरा आया है अभी बैंगलोर और मुझे बैंगलोर जाना है। ऑलराइट, सो मैं अपना सारा ब्लॉग, तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि मैं सारा ब्लॉग बनाऊंगी, वहां जो भी जाऊंगी बनाऊंगी अगर टाइम मिला तो, वरना ठीक है। और फर्स्ट डे तो आपको पता है स्क्रीनिंग होता है, उसमें OIR होता है, तो OIR का वो अच्छे से आपको बता देंगे कोचिंग वाले। एंड उनका कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब सिटिंग में कभी कभी चेयर्स जो है वो कम पड़ जाती थी जस्ट बिकॉज बच्चे कुछ ज्यादा ही हो रहे थे कोचिंग में, बिकॉज SSB आ रहा है एंड बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं। NDA में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी क्वालिफाई होकर आए हुए थे। सो आप लोग कोचिंग लेकर देखो बल्लोई एकेडमी में। हाँ, मेरी एकेडमी का नाम बल्लोई है, मैंने बताया ही नहीं। एकेडमी का नाम बल्लोई है जो कि जनकपुरी में है एंड दैट एकेडमी इज रियली सुपर। मैं इनका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, मैं बस गई हूँ वहां पर एंड मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ कैसा रिव्यू वगैरह है वहाँ की, कैसी एकेडमी है। पूरी एकेडमी बहुत ज्यादा अच्छी है। उनके एक हेड ऑफिस है, वहां पर भी उनकी क्लासेस होती हैं कभी कभी, और एक उनकी रिटन क्लासेस है, वहां पे भी उनकी कोचिंग वो लोग करवाते हैं। सो दोनों जगह जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा लगेगा और वहाँ की जो हॉस्टल वाली फैसिलिटी है वो भी अच्छी है। मेरे को हॉस्टल के बारे में नहीं पता, बट कुछ बच्चे जाया करते थे हॉस्टल में, तो हॉस्टल भी वहाँ का शायद अच्छा ही है। आप लोग फिर भी अगर जा रहे हो तो जाके देख लेना हॉस्टल में भी। एंड हॉस्टल ज्यादा दूर भी नहीं है। आपको एक इंडोर, बहुत सारी तो एक्टिविटीज आपकी इंडोर ही होंगी, जो सारी GTO वाली होती है ना, बस एक जो है वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वाली, वो आपकी वो लोग बाहर लेके जाएंगे। उन्होंने ग्राउंड बनाया हुआ है, वहां पर वो लोग लेकर जाया करेंगे आपको। ऑलराइट, सो ये सारी तो बातें। सो फर्स्ट डे तो हमारा OLQs हुआ था, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, जो सर वहाँ के हेड है उन्हीं ने हमको पढ़ाया था। एंड नेक्स्ट डे हमारा OIR, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट डे OIR हुआ था। OIR में तो A to Z उन्होंने सब कुछ बता दिया था। एंड उसके नेक्स्ट डे ही हमारा टेट था। उन्होंने पहले जो ये PPDT है वो पहले नहीं करवाया, क्योंकि PPDT के लिए उन्हें टाइम देना था कि बच्चों को कैसे स्टोरीज बनानी है, कैसे उन्हें प्रेजेंट करनी है वहां पर, तो उसके लिए PPDT के लिए उन्होंने टाइम दिया था, बाद में करवाई थी। तो उसके बाद टेट हुआ था नेक्स्ट डे, एंड देन नेक्स्ट डे वैट हुआ था, एंड उसके नेक्स्ट डे हुआ था SRT, एंड उसके नेक्स्ट डे ही शायद से PPDT नहीं, उसके नेक्स्ट डे हमारा इंटरव्यू ट्रिक्स हुई थी कि आपके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या चीजें आपको बोलनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए, कहाँ पे आपको मतलब नॉट नहीं, ये नहीं यूज करना, मतलब सारी ट्रिक्स बता देंगे आपको कैसे आपको इंटरव्यू देना है वहां पर। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे हमारा PPDT हुआ था। PPDT में भी बहुत अच्छे से करवाया था उन्होंने, ग्रुप्स वगैरह बनवा के, फिर उन्होंने स्टोरीज को नरेट भी करवाया था। एंड उसके बाद जो आप इंडिविजुअली जो बोलते हो वो भी करवाया था उन्होंने, कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा डर भी रहे थे, थोड़ा हेजिटेट भी हो रहे थे, बट सबने अच्छे से कर दिया था। एंड उसके बाद GTO सीरीज शुरू हो गई थी। GTO सीरीज भी मतलब अच्छे से ही हो गई थी। कुछ मोस्टली तो उनकी मतलब टेरिस में ही है, मैं आपको वीडियोस वगैरह के क्लिप्स यहाँ पर डाल दूंगी कहीं पर,
तो ज़्यादातर तो उनकी कुछ टेरेस पर ही हैं और बस एक है जो इंडिविजुअल वाली वो बाहर है। पीजीटी जो था वो भी बहुत अच्छे से हुआ था, जीपीई भी अच्छे से हुआ था, सारे एक्टिविटीज जो है वो लोग बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो आपको जाना चाहिए अगर आप एसएसबी की कोचिंग लेना चाहते हो तो। ऑलराइट, सो मेरा तो मैंने आपको बता देना, मैं एनसीसी एंट्री से जा रही हूँ। ऑलराइट, सो आप एनसीसी एंट्री के थ्रू भी जा सकते हो। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट आप लोग सीधा एसएसबी के इंटरव्यू के लिए जाते हो। ऑलराइट, और अगर मैं सीडीएस के थ्रू बता दूं आपको, तो सीडीएस के थ्रू आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एनडीए के थ्रू भी आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो। और आपको ड्रेस वगैरह का तो आपको पता ही चल जाएगा प्रोसीजर। जब मैं ड्रेस पहन के वहां जाऊंगी तो मैं अपनी पूरी ड्रेस की मे बी शायद मैं वीडियो बना लूं और मे बी नॉट, बिकॉज आई एम ऑलवेज नर्वस, और मैं उस टाइम पे भी मे बी नर्वस ही रहूं। तो देखते हैं वहां पे कैसा क्या होता है। वैसे अगर मैं ड्रेस ले आई, अभी तो मैं ड्रेस लाई नहीं हूँ, जब मैं ड्रेस ले आऊंगी तो आपको उसका पूरा ड्रेसअप भी दिखा दूंगी कि कैसी ड्रेस होती है कैसी नहीं। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहती थी बिकॉज मैंने वहां पर कोचिंग ली है एंड आई फील वेरी गुड, बिकॉज मैं पहले जितना मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे अब बहुत कुछ पता है एसएसबी के बारे में, और बहुत सारी चीजें जो हैं अब मैं इम्प्रूव और ज्यादा करने की कोशिश करूंगी। बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत जगह पे लैक हो रहा था, जैसे पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे क्राउड को देखकर थोड़ा हेजिटेट हो रही थी। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें मुझे सीखनी है और इसके लिए मैं मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए भी उन्होंने बोला मिरर वगैरह के सामने प्रैक्टिस करो, मतलब क्राउड को फेस करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें है ना वो आपको अच्छे से बता देंगे, अच्छे सिखा देंगे, आपको अच्छे से पूरी गाइडेंस वगैरह हर चीज मिलेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कोई भी, अगर एसएसबी इंटरव्यू के लिए कोई भी एकेडमी अगर आपने देख रखी है तो आप सबको भूल जाओ, सिर्फ बल्लोई एकेडमी में जाओ। बल्लोई एकेडमी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप एक बार जाके देखना जरूर। बस फीस स्ट्रक्चर उनका थोड़ा हाई है, बट एज कम्पेयर टू अदर अकेडमीज, मैं एक अकेडमी में और गई थी, वहां पे वो लोग 17,000 मांग रहे थे। सो वो सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का दे रहे थे, तो ये 14 डेज का दे रहे हैं एक्स्ट्रा। ये अभी उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि आप एक्स्ट्रा में 3 डेज भी आ सकते हो कभी भी आपके इंटरव्यू से पहले, कि अगर आप कोई चीज में लैक कर रहे हो तो आप 3 दिन एक्स्ट्रा भी आ सकते हो। तो ये चीज भी उनकी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और मतलब वो लोग बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं आपसे। टीचर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसे रूड वगैरह नहीं है, सारे टीचर्स बहुत ही पोलाइटली बात करेंगे। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जैसे अगर कोई बच्चा मेडिकल करवाना चाहता है कि उसे अपने आप पे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहता है कि मैं हाँ क्लियर कर लूंगा तो एक बार मेडिकल भी करवा लो, तो आप मेडिकल भी करवा सकते हो। मेडिकल के आपके 500 रुपीज लगेंगे, उसमें आपको वो लोग बता देंगे पूरा प्रोसीजर, आप मेडिकली फिट हो या नहीं, या फिर आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप एकदम ठीक हो जाओ, तो वो सारी चीजें बता देंगे। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। इंग्लिश क्लास भी होती थी वहाँ पे, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास, जिसमें आप लोग अपनी कम्युनिकेटिंग जो है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप अपनी इंग्लिश भी अच्छी कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। मैंने वो क्लास नहीं ली थी। मैंने वो क्लास इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे ही अच्छी कर सकती हूँ, और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा मतलब कम्युनिकेटिंग स्किल्स अच्छी करने की कोशिश भी करती हूँ, एंड कॉन्फिडेंस के लिए तो कोशिश कर ही रही हूँ। सो अगर आप करना चाहते हो मेरी तरफ से तो आप जा सकते हो। अकेडमी बहुत ज्यादा अच्छी अकेडमी है, और ज्यादातर तो उसके बाद ही पता चलेगा इंटरव्यू के बाद मेरा इंटरव्यू कैसा गया, कि मतलब उन्होंने बोला कि मेरी बुक्स वगैरह आप अच्छे से पढ़ लोगे, उसी में आपका अच्छे से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे सारी मेहनत तो मेरी होनी चाहिए, उन्होंने तो बस गाइडेंस दे दी है, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी। ऑलराइट, सो मैं यही बता रही थी आपको कि मैं लास्ट फ्यू डेज कहाँ थी, क्या हो रहा था, मैं इसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए मैं कुछ मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। सो दैट्स वाई। और अगर आपको कभी भी एसएसबी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, देन जस्ट डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल हियर। सो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे यूट्यूब में भी इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट डाल दो तो मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगी, या फिर अगर उस वीडियो पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए होगी तो मैं वो भी बना दूंगी। बट मतलब कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट जितना पता है मैं उस हिसाब से मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी, बस इतना ही था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी है, या फिर आप ऐसी एसएसबी से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, कमेंट भी कर दीजिएगा कि कोई भी क्वेरी वगैरह है आपकी इस क्वेश्चन वगैरह को लेकर, तो मैं आपको वो भी सॉल्व कर दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एंड तब तक के लिए बाय बाय। I came here to party, I'm not gonna lie.